پریز دی لارڈ. خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو میرا سلام. گریس ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ناظرین کے لیے آج ایک بار پھر میں کلام مقدس کی چند ایک باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ کو علم ہے کہ ہم گریس ٹیلی ویژن کے ذریعہ سے آپ تک کلام کی سچائیوں کو، کلام کے ان بھیدوں کو جو ایمان کی ترقی، حوصلے اور زور کا باعث بنتے ہیں، پہنچاتے ہیں. میں اس سے پہلے کہ کلام مقدس کو آپ کے سامنے شیئر کروں، ریکویسٹ کرنا چاہوں گا تمام دیکھنے والوں سے کہ گریس ٹیلی ویژن پاکستان کے نام سے فیس بک پیج ہے، اسے ضرور لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. پھر گریس ٹیلی ویژن پاکستان آفیشیل کے نام سے یوٹیوب چینل ہے ہمارا، اسے بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے یا کلام کو ہم آپ تک پہنچائیں تو آپ کو آٹومیٹیکلی نوٹیفائی کیا جا سکے. میرے عزیز، آج ڈیوائن انٹرونشن کے تعلق سے میں کلام کی چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. زندگی میں ہمارے بہت سارے ایسے حالات اور واقعات، معاملات ہوتے ہیں جن میں ہمیں نہ صرف مشکلات کا سامنا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہے، بلکہ مایوسی، دکھ اور تکلیف سے بھی ہم گزرتے ہیں. بہت سارے ایسے حالات ہوتے ہیں جہاں کوئی دنیا کا شخص آپ کی اور میری مدد کے لیے نہیں آتا ہے. پھر ایسے بھی حالات سے ہمارا گزر ہوتا ہے جہاں بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں پر وہ ہماری کچھ مدد کر نہیں سکتے. پھر تیسرے نمبر پر ایسے معاملات اور حالات سے ہمارا گزر ہوتا ہے جہاں یہ کسی بھی انسان کی پہنچ سے ہی بات باہر ہوتی ہے کہ وہ ہماری اس جگہ مدد کر سکے. جب کوئی انسان ہماری مدد نہ کرے، جب انسان مدد کرنا چاہے اور وہ کر نہ پائے، اس کی طاقت سے یہ بات باہر ہو، یا پھر انسان کی جو لیاقت ہے، جو انسان کی صلاحیت ہے، ہماری ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہو. When no one wants to help you, when people try to help but they may fail. اور تیسرے نمبر پر sometime it is just beyond the ability of anybody to help you. بائبل مقدس میں بہت سارے بیانات موجود ہیں. خدا کے پاس آنے والے کو یقین رکھنا چاہیے کہ خدا موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. پھر خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے، انسان سے سب کچھ نہیں ہو سکتا. خدا جب چاہے، جو چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس کے لیے چاہے کرنے کی قدرت رکھتا ہے. بائبل مقدس میں ہم کچھ سرٹن ایریاز پر غور کریں گے جو ہماری لائف کے معاملات ہیں، ان پر دھیان دیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح we all need divine intervention in our lives. ہم سب، آپ ہوں یا میں ہوں، ہمیں الہی مداخلت کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ خدا خود ہمارے درمیان ہو اور ہم سے بات کرے. ہمارے معاملات میں خدا خود آئے اور پھر اپنی قدرت کے وسیلہ سے عجائبات، معجزات اور نشانات کو ظاہر کرے. ان تینوں چیزوں کو جاننے کے لیے جو سب سے پہلا ایریا ہماری لائف کا ہے وہ ہے فزیکل. جو ہماری جسمانی زندگی ہے اس میں ہمیں خدا کی قدرت کی بے حد ضرورت ہے. بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل، اس کا 5واں باب اور 2 آیت سے لے کر 9 آیت تک جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں 38 برس سے ایک شخص پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور آپ اس واقعے سے بخوبی واقف ہے کہ کس طرح وہاں اور بہت سارے اندھے، لولے، لنگڑے، مفلوج، پس مردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر رہتے تھے. اور بائبل مقدس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ فرشتہ اپنے وقت پر آتا، پانی کو ہلاتا، اور جب وہ پانی کو ہلاتا تو جو کوئی پہلے اس میں گرتا، اس حوض میں کود پڑتا، وہ شفا پا جاتا. یہ شخص 38 برس سے وہاں تھا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ وہاں پہنچتا دوسرے اس سے پہلے چھلانگ لگاتے شفا پا جاتے.
पर एक दिन आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह खुद इस शख्स की मदद के लिए आया। सो वी सी डिवाइन इंटरवेंशन हियर। देखें कि जब कोई शख्स उसकी मदद नहीं कर रहा, अपने लिए लोग खुद दौड़ रहे हैं, अपनी शिफा के लिए भाग रहे हैं, किसी को 38 साल तक उसकी फिक्र नहीं है, ये यहाँ पर तन्हा मौजूद है, अकेला है, कोई फैमिली मेंबर उसके साथ नहीं है, कोई दोस्त उसके साथ नहीं है, जितने उसके इर्द गिर्द है वो भी मजबूर हैं और ये भी मजबूर है, और एक मजबूर दूसरे मजबूर की मदद नहीं कर रहा, तो ये अकेला है, कोई इसकी मदद नहीं कर रहा। मैं यहाँ आपको इनकरेज करना चाहूँगा, अगर आपकी सिचुएशन भी इस शख्स की तरह है, जब कोई शख्स आपकी मदद नहीं कर रहा, तो ऑल यू नीड इज़ गॉड। आपको खुदा की ज़रूरत है। और यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुद चलकर इसके पास आए और कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? और उसने कहा कि मेरे पास कोई नहीं जो मेरी मदद करे। सो मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, जब आपकी कोई मदद करने वाला ना हो, तो खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ है, वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। आइए उस पर हम भरोसा करें, उस पर हम तकिया करें। दूसरी मिसाल मत्ती की इंजील उसका 17वां बाब 14वीं आयत से 18वीं आयत तक हम देखते हैं, जहाँ पर एक शख्स है जिसके बेटे में बदरवा थी और वो उसे सताती थी, वो मारती थी, कई एक बार उसे आग में डालने की कोशिश की, उसकी जान लेनी चाहिए। वो उसे शागिर्दों के पास लेकर आया। जब शागिर्दों के पास लेकर आया, शागिर्द कोशिश कर रहे हैं कि वो रिहाई पा जाए, लेकिन उनकी कोशिश के बावजूद वो लड़का इब्लीस के शिकंजा से छुटकारा ना पा सका। यहाँ पर एक सिचुएशन दूसरी है। हौज पर मौजूद 38 बरस से एक शख्स की मदद ही कोई नहीं करना चाहता, तो वहाँ यीशु पहुँचा। ये सिचुएशन दूसरी है। यहाँ एक बाप अपने बच्चे को लेकर आया है और शागिर्द उसकी मदद करना चाहते हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं, जोर भी मार रहे हैं, पर वो कामयाब नहीं हो रहे। ऐसी सूरत में फिर खुदावंद यीशु मसीह ने इंटरवीन किया, फिर उन्होंने मदाखलत की, फिर वो सामने आए, फिर बीच में आए और आकर कहा, मुझे मेरे पास लेकर आओ। और आप इस स्टोरी से वाकिफ़ हैं कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने उस लड़के को शिफा बख्श दी। फिर मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब पहली आयत से 3री आयत तक अगर हम मुतालिया करें, तो एक कोढ़ी की मिसाल। वो कोढ़ी खुदावंद यीशु मसीह को देखकर दूर से पुकारने लगे। अब ये जो सिचुएशन है, इसमें कोई इंसान मदद करना चाहता ही नहीं। ये उसकी एबिलिटीज़, उसकी ताकत, उसकी लियाकत से बाहर की बात। कोढ़ियों से लोग दूर चले जाते थे, कोढ़ियों के करीब नहीं आते थे। तो जो बात मैंने शुरू में कही, इन तीनों हवाला जात में हम वो स्टोरीज देखते हैं कि जब कोई इंसान मदद करना ना चाहे, जब कोई करना चाहता भी है, कोशिश भी करता है, पर वो कामयाब नहीं हो पाता, और फिर उसके बाद कुछ मामलात ऐसे होते हैं जब इंसान की पहुंच से ही वो सब कुछ बाहर है। इन तीनों हालतों में हमें खुदावंद यीशु मसीह की ज़रूरत है। बैते हसदा का शख्स 38 बरस से कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, यीशु ने की। ये बाप अपने बच्चे को लेकर आए शागिर्दों के पास, कोशिश उन्होंने की पर नाकाम हो गए। यीशु कभी नाकाम नहीं होता। खुदावंद यीशु मसीह जब आए, उन्होंने शिफा बख्श दी। कोढ़ी सोच ही नहीं सकते कि कोई शख्स हमारी मदद करेगा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें भी शिफा दी। सो अगर आप ऐसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं जब कोई आपकी मदद ना करना चाहे, तो यीशु को पुकारें। अगर आप ऐसे हालात से गुजर रहे हैं जब लोग कोशिश कर रहे हैं आपकी मदद करें, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे, तो यीशु को पुकारें। और अगर आपके हालात ऐसे हो गए हैं कि ऐसी सिचुएशन में हैं जब कोई आपकी मदद कर ही नहीं सकता, ये उसकी एबिलिटीज़ और उसकी जो ताकत है, लियाकत है, खूबी है, उससे बालातर बात है, तो अभी यीशु को पुकारें। सो यहाँ इन तीनों हवाला जात में हमने देखा कि हमारी जो फिज़िकल नीड्स हैं, उसमें किस तरह खुदावंद यीशु मसीह की जो इंटरवेंशन है उसकी हमें ज़रूरत है। उनका होना कितना ज़रूरी है, वो खुद आए कितना ज़रूरी है। और उसके बाद फिर जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ, ये थी हमारी फिज़िकल लाइफ। जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ है, उसमें भी अगर हम दूसरा सलातीन
चौथा बाब पहली आयत से 7वीं आयत देखते हैं तो आपको पता है कि एक शख्स था जो मर गया और उसके फिर 2 बेटे थे और कर्ज खा आए और कर्ज खा अपना कर्ज वापस मांगते थे और बेवा के पास उन्हें कर्ज लौटाने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने उसे कहा कि हम तेरे लड़कों को साथ ले जाएंगे। तो फिर वो बेवा जो थी वो गरीब औरत थी और उसने फिर नबी के हजूर, अलीशा नबी के हजूर इल्तिजा की। अलीशा नबी ने उसे कहा कि तू फिर अपने लिए कुछ बर्तन उधार मांग ले। उसने फिर अपने पड़ोसियों से बर्तन लिए। तो ये फाइनेंशियल नीड की बात है। फाइनेंशियल नीड की हालत में भी हमें खुदा की ज़रूरत है। वो औरत अपने बच्चों की मदद कर नहीं सकती, उसका शौहर मौजूद ही नहीं है तो वो मदद करेगा कैसे। इर्द गिर्द के लोग गरीब हैं, चूँकि वो उनके यहाँ बहुत सारे खाली बर्तन जो हैं इस बात की अलामत है कि उनके अपने हालात भी उस तरह बेहतर नहीं थे। और ये फिर खुदावंद के नबी के पास गई और नबी ने उससे कहा कि सिर्फ खुदा ही अब कुछ कर सकता है, मैं खुदा से दुआ करूँगा और खुदा तुझे बरकत देगा। और आप जानते हैं कि किस तरह उसके हाँ बरकत को उसने जारी कर दिया और उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हुई, कर्ज भी उतर गया और उसके पास बहुत कुछ बाकी रह गया। मेरे अजीज़, अगर आपको माली मुश्किलात का सामना है तो ऑल यू नीड इज़ डिवाइन इंटरवेंशन। अगर आपको फिजिकल नीड्स का सामना है, ऑल यू नीड इज़ डिवाइन इंटरवेंशन। खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहता है। मैरिटल लाइफ, हमारी जो शादीशुदा ज़िंदगी हैं उसमें भी डिवाइन इंटरवेंशन की हमें ज़रूरत है। इलाही मदाखलत, खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल, खुदा का हाथ, उसकी हमें ज़रूरत है। हन्ना की मिसाल पहले सैमुअल पहले बाब में मौजूद है। हन्ना किस तरह खुदा के हजूर इल्तिजाएं करती, दुआ करती। वो बे औलाद थी और आपको पता है कि दूसरी खातून उस पर इल्ज़ाम लगाती और उसे ना जाने क्या कुछ कहती थी, लेकिन इसके बावजूद वो खुदा के हजूर चिल्लाती, दुआएं करती, इल्तिजाएं करती थी, हिम्मत ना हारे। वो खुदा हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी में बरकतों को जारी करने की कुदरत रखता है। आप देख सकते हैं यहाँ भी वही चीज़ें, शौहर मदद करना चाहता है, शौहर की ख्वाहिश है कि इसके भी औलाद हो, लेकिन वो उसे औलाद वाली नहीं कर सका। उसके बाद दूसरी औरत जो है वो उसके खिलाफ है, वो तो उसकी मदद करना चाहती ही नहीं है। एली काहिन वो उसके मसले को उस तौर पे नहीं समझ रहा है, वो कहता है कि शायद ये नशे में है। तो ये इस तरह की सिचुएशन थी और ऐसी सिचुएशन में भी खुदा ने मदाखलत की। सो मैं दुआ करता हूँ आज कि खुदा आपके मामलात में मदाखलत करे। आप भी खुदा से कहे, खुदावंद तू आ, मेरी जो जिस्मानी ज़रूरतें उसमें आ, मेरी जो रूहानी ज़रूरतें उसमें आ, मेरी जो ख़ानदानी ज़रूरतें उसमें आ, मेरी जो अज़दवाजी ज़रूरतें हैं उसमें आ, मेरी जो माली ज़रूरतें हैं उसमें आ। आपका जो कोई मसला क्यों नहीं है, आज मैं इनकरेज करना चाहूँगा कि आप खुदा की मदाखलत के लिए दुआ करें कि खुदावंद तू खुद आ और इंटरवेन कर, तू खुद आ और शामिल हाल हो, तू खुद आ और अपनी कुदरत को जाहिर कर। आपके मसाइल कैसे ही क्यों ना हो, आपकी परेशानियां कैसी क्यों ना हो, माली ज़रूरतें कितनी क्यों ना हो, जिस्मानी ज़रूरत वो पूरी करेगा, रूहानी ज़रूरत वो पूरी करेगा, अज़दवाजी नीड्स को वो पूरी करेगा, जो भी आपका मसला है। लिहाजा आइए आज हम खुदा के हजूर दुआ करें कि खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी में आ। 38 बरस से शख्स वहाँ पड़ा है, कोई मदद नहीं कर रहा, खुदावंद यीशु मसीह खुद आ गया। कोड़ी मजबूर थे, खुदावंद यीशु मसीह आया उनके पास। ये बाप जो अपने बेटे की शिफा चाहता है, खुदावंद ने उसे शिफा दी। वो औरत जिसके पास कोई वसाइल नहीं है, खुदा की कुदरत ने उसको वसाइल की कसरत से मामूर कर दिया। हन्ना बे औलाद थी और खुदा की कुदरत ने उसे औलाद बख्श दी है। खुदावंद के हजूर मेरी दुआ है कि खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, अपने जलाल में महफूज रखे और जहाँ कहीं ज़रूरत है वो खुद इंटरवेन करे और बरकतों को कसरत से जारी करे। ईमान में मजबूत रहें, दलेर रहें, खुदावंद के हजूर दयानतदारी वफादारी की ज़िंदगी बसर करें।
تاکہ خداوند کا جلال آپ روز اپنی زندگی میں دیکھتے رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ دیکھتے رہیں گریس ٹیلی ویژن، فضل سب کے لیے۔